So let's start our lecture number 2 in kinematics. So kinematics में हम लोगों ने lecture number 1 कर लिया. lecture number 1 में हम लोगों ने देखा था motion. We have seen type of motions. We have seen translatory. In the translatory also we have seen rectilinear and the curvilinear, and then we have seen translation plus rotation motion. We have seen the importance of frame of reference and the importance of time while defining an emotion. Last lecture में हमने देखा था. Then we have seen the trajectory, equation of trajectories, how we get the equation of trajectory, and then we have seen distance and displacement, and we have done some related questions on distance and displacement, how they are equal, how they are unequal, and what are the differences between distance and displacement. We have got into details of that. उसके बाद हम लोगों ने देखा था speed and velocity. What is speed, what is velocity, and then we have seen average speed, average velocity, and why the average speed and average velocity could not help us in defining the motion. So that's why we have come across a term called instantaneous velocity. Instantaneous velocity is nothing but the extension of average velocity using calculus. So that's all we have seen in the last lecture. In the lecture number 2, our plan is to cover up acceleration. We'll see the acceleration, we'll see instantaneous acceleration and average acceleration. Then we'll move on to the motion in a straight line, and see how the motion in a straight line will be in uniformly accelerated motion and non-uniformly accelerated motion. And finally we'll do the uniformly accelerated motion, where we are going to see the equation in kinematics. And covering these 3 topics, हम लोग कुछ एक क्वेश्चन करेंगे related with this. Okay, so let's begin. So let us begin with the acceleration. So acceleration is how fast your velocity is changing. Okay, how fast is your velocity is changing. So suppose you are moving in this direction A to B. ठीक है, तो velocity आपकी एक तो सी है कि अगर आपको कहीं से भी एक्सटर्नल पुश किसी भी साइड से नहीं आ रहा है, so you will keep on moving with the same velocity. Suppose 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यू विल कीप ऑन मूविंग विद दिस वेलोसिटी. अगर कहीं से भी आपको कोई भी पुश नहीं आ रहा है, अगर इफ सम पुश इज कमिंग फ्रॉम एनी साइड, सपोज द पुश इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, सो योर स्पीड इज गोइंग टू गेट इंक्रीज. इफ द पुश इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, सो योर स्पीड इज गोइंग टू गेट डिक्रीज, योर वेलोसिटी इज गोइंग टू गेट डिक्रीज. Here velocity is going to get increase. So if suppose the push, you're getting the push from some this side push, some vertical push, then you will also change your direction. ओके, सो हमने जैसे दिखा था ना, जो भी परपेंडिकुलर पुश आएगा दैट इज़ गोइंग टू चेंज योर डायरेक्शन, जो अलॉन्ग द साइड पुश होगा दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज योर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. सो सपोज आपके साथ वर्टिकल पुश आया ऐसे, तो इट विल चेंज योर वेलोसिटी ऑल्सो, इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर वेलोसिटी. एंड अगर कोई ऐसा पुश आया विच इज़ इन सम एंगल, सो इसका जो कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, सपोज दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट, सो जो हॉरिजॉन्टल दिस वाला कंपोनेंट होगा इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज योर स्पीड, एंड दिस वन इज गोइंग टू, दिस कंपोनेंट इज गोइंग टू चेंज योर वेलोसिटी. ठीक है, इट इज़ गोइंग टू चेंज योर वेलोसिटी. सो किसी भी डायरेक्शन से अगर पुश आ रहा है आपका, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर वेलोसिटी. सो पुश इज नथिंग बट इट्स योर एक्सेलरेशन. ठीक है, so suppose you're moving with same 40 किलोमीटर पर आवर, so कुछ भी आपको पुश नहीं मिल रहा, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, the acceleration is 0. ठीक है, अगर you are getting a push from this side, you are speeding up. If you are getting a push from this side, you are speeding down. Then if you are getting a push in this vertical direction, then you are changing your direction. Okay, so push coming from along the side, opposite side, and at some angle or some perpendicular to the motion, then you will change the direction also. Okay, so push is nothing but is your acceleration only. Push is nothing but acceleration, means push is coming from some external force and that is creating an acceleration. So in this chapter in kinematics that I have told you, we are studying the effects, we are not studying the cause of that acceleration. So but actual cause is, I'm saying the actual cause is the push only, so that is creating the acceleration. Okay, so how your velocity is changing, so we monitor how our velocity is changing from one time period to another time period, for one instant to another instant, so that we are seeing the change, and that change is coming from acceleration. So what is my average acceleration? Average acceleration is nothing but कि time t1 से
t2 के बीच में, सपोज वेलोसिटी हियर इज v1, वेलोसिटी हियर इज v2, सो t1 से t2 के बीच में चेंज इन वेलोसिटी इज v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, सो दैट इज माय एवरेज एक्सीलरेशन. ठीक है, यहाँ से change in acceleration, change in velocity over the change in time. Okay, so that is my average acceleration, total change in velocity over total time. So suppose ये एक illustration है. Suppose this particle is moving. ये xt graph है particle, that is how it is moving. So we know xt graph के particle पे if we draw a tangent at that point, we will get the velocity of that particle. Okay, so now at this point v1, this is my tangent, this is my instantaneous velocity of this particle at this point. Now at the at point p2, the particle velocity is this v2. So now the particle velocity have got changed to this direction. That means the direction also change, and maybe the magnitude of velocity will also change. So some force, some push has come, or some acceleration would have come from this side. Some push or some acceleration would have come from these sides. Because of this only it got changed its direction, or it might change its magnitude of velocity. Okay, so some push would have come. So just imagine कि आप इस डायरेक्शन मूव कर रहे हो, जब यहाँ पे आपको कहीं से कोई पुश आएगा तभी तो आपकी डायरेक्शन ऐसे चेंज होगी ना. सो सम काइंड ऑफ अ पुश विच इज चेंजिंग योर मैग्नीट्यूड एंड सम चेंजिंग योर मैग्नीट्यूड एंड चेंजिंग योर direction also. So that change is nothing but it is acceleration. So we'll calculate here. So delta v, change in velocity, is this is my initial, this is my final. So the final, so this is my final. So delta v will be final minus initial. So this is my push. So this is my difference in change in velocity has come. और अगर मैं उसको टाइम से चेंज कितने टाइम पीरियड में ये चेंज आया, अगर मैं उसको डिवाइड कर दूँ उस टाइम पीरियड से, आई विल गेट द एवरेज एक्सेलरेशन. ठीक है, सो माई initial velocity was this and it got changed to this. ठीक है, initial velocity, and this is my delta v, change in velocity. Okay, this is my delta v. हमने triangle law लगा दिया. This is my delta v. So this delta v is my v2 minus v1. Okay, so this is my change in velocity. So now if the motion is in this direction, velocity is in this direction, this we say the positive direction, and this we say the negative direction. Okay, so the positive direction velocity is positive and the acceleration is also positive. So particle will keep on accelerating. There is no stopping of the particle. Particle will keep on accelerating. So if we look at like this is my velocity. Suppose this is my time. So if I start initial velocity, if I take it 0, so particle will keep on moving. Okay, so it is this acceleration, if it's constant, it will go like this. If it's increasing, it will go like this. Okay. So particle की initial velocity, it will keep on increasing and it will go in the same direction. Okay, and here is कि अगर मेरी acceleration opposite direction में velocity के, so push is coming from the opposite side, so इसकी velocity अगर यहाँ पे है, this velocity will keep on decreasing. So velocity will keep on decreasing. At one point it will get 0, and then if the acceleration continues, it will turn around and it will start increasing from here. Start increasing its velocity from in opposite direction. Okay, so अगर इसको हम देखें तो अगर मैं यहाँ पे मेरा acceleration पॉजिटिव साइड में है, velocity is negative, so it will go like this. Acceleration is, अगर ये मेरा suppose vt है, so it will go like this. Sorry, yes, so no, this one will like this. Okay, so this is like okay, initially मेरी acceleration is opposite, it is negative direction, so this is my acceleration. ये जो मैं slope लूँगा, the slope is negative. This is the slope. If I take this slope is negative, so the slope is negative, so acceleration is negative, so velocity will keep on decreasing. It will go up to 0 and it will start increasing in the opposite direction. Okay, so that is what this particle deaccelerate. Okay, जब भी मेरा push is coming in the opposite direction of motion. Okay, this is clear. अगर direction of motion में मेरा acceleration आ रहा है, so it is giving me push, my velocity will keep on increasing
ठीक है, हम वी आर कंसिडरिंग ओनली वन डायमेंशन हेयर. सो वन डायमेंशन में मीन्स इधर इट इज़ अलॉन्ग दिस डायरेक्शन और दिस एंटी पैरेलल टू द मोशन और द पैरेलल टू द मोशन पुश आएगा. यहाँ पे अगर मेरा मोशन इस डायरेक्शन में है तो मेरा अपोजिट डायरेक्शन में अगर मेरी एक्सेलरेशन है तो पार्टिकल विल कीप ऑन डिक्रीजिंग इट्स स्पीड. एट वन पॉइंट ऑफ अ टाइम इट विल गेट जीरो एंड देन इट विल टर्न अराउंड एंड स्टार्ट मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. और मेरे को अगर इसको ग्राफिकली देखना है, हम लोग देखेंगे, वी आर इन लेक्चर नंबर 5 और 6 वी आर गोइंग टू कवर अप द ग्राफ्स, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंट्यूशन ऑफ दैट. सपोज दिस इज माई वेलोसिटी, दिस इज माई टाइम, सो द ग्राफ विल गो लाइक दिस. कि वो पहले इस पॉइंट पे क्या एक्सेलरेशन है, इस पॉइंट पे द स्लोप इज दिस, स्लोप इज दिस इज व्हाट इज द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. ठीक है, सो नाउ acceleration, this velocity is positive, acceleration is negative, but the velocities keep on decreasing. It got to zero at this point, and from here the velocity is increasing in the opposite direction. Okay, the velocity is increasing in the opposite direction. Same way, the velocity is like this, it got zero at this point and got increasing in the opposite direction. Like this it will go. Okay, so we'll see one question. कि initial velocity एक circular motion है, इस पे पार्टिकल मेरा यहाँ पे है, it is having the velocity v1 here. Okay, so don't consider it as a circular motion, और just like के velocity इस point पे मेरी यहाँ पे ऐसे है, and then at this point velocity मेरी ये हो गई है. ठीक है, and both the velocity की जो magnitude है that is same. ठीक है, स्पीड नहीं चेंज हो रही है, magnitude of velocity is same, but direction got changed. So that means कि it is totally perpendicularly, some force is acting on that, some push is coming perpendicular, so acceleration is always be perpendicular, then only ke uski velocity is not changing, only the direction changes. That we are going to see it in later chapter. I have just given you the intuition for this. तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, काइनेमेटिक्स में वी आर ओनली इन्वॉल्व इन फाइंडिंग द मोशन, वी आर ओनली इन्वॉल्व इन फाइंडिंग द मोशन. इफेक्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं. तो इफेक्ट क्या हुआ यहाँ पे पुश से कि इसकी वेलोसिटी v1 इस डायरेक्शन में थी, v2 इस डायरेक्शन में हो गई. ठीक है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि दिस इज़ माई इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज़ माई फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, और नाउ v2 माइनस चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा मेरा, v2 माइनस v1. ठीक है, दिस इज माई v2 माइनस v1. अगेन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया हमने, सो दिस वन इज v2 माइनस v1. ओके, सो दिस इज v2 एंड दिस इज माइनस v1. ठीक है, दिस इज माइनस v1 एंड इट इज अगेन सेम v2 minus v1. Okay, this is v2 minus v1. Now we have to consider this angle. Okay, remember we have to consider the angle between v2 minus, अगर मेरे को v2 minus v1 का mod चाहिए, this mod v2 minus v1 का mod चाहिए इसका, तो I need to consider the angle between v2 and v1 when they are connected tail to tail. So v2 minus v1 connected, so v2 is this direction, v2 is in this direction, v1 is in this direction, so I have to consider this angle. So this angle is what, 180 माइनस थीटा, क्योंकि मेरे को v1 और v2 के बीच में एंगल दे रखा है. ठीक है, सो जब 180 माइनस थीटा होता है देन एनालिटिकली वी हैव सीन कि माई मॉड ऑफ v2 माइनस v1 इज नथिंग बट v1 स्क्वायर. ये इसका जो मॉड होगा दैट इज v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा. ओके, नाउ आई नो माई मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज इज सेम दोनों का, तो माई पुट द वैल्यू v here and I calculate and how I got this theta. Okay, मेरे को सेंटर में ये एंगल दे रखा है कि ये जो यहाँ से P and Q के बीच में एंगल, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज परपेंडिकुलर ऑन दिस इज 90 डिग्री. ठीक है, देन दिस एंगल विल बी 180 माइनस थीटा. अगर ये 180 माइनस थीटा है दैट विल कम एज अ थीटा. सो दैट्स वाई v1 और v2 के बीच में माई एंगल इज थीटा. ओके, बट v1 और माइनस v1 के बीच में एंगल इज 180 माइनस थीटा. और मेरे को आई हैव टू फाइंड आउट मॉड बिटवीन v2 माइनस v1. तो यहाँ पे जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में दैट इज 180 माइनस थीटा. आई पुट द वैल्यू, दैट्स वाई दिस माइनस साइन हैज कम अप हियर एंड वी कैलकुलेटेड दैट एंड आई हैव गॉट दिस थिंग. आई पुट द वैल्यू एंड 1 माइनस कॉस थीटा, आई चेंज इट टू हाफ एंगल 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड फाइनली आई हैव गॉट दिस डेल्टा चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज कम 2v साइन थीटा बाई 2. ओके, दिस इज माई चेंज इन वेलोसिटी. अगर मेरे को टाइम पीरियड देखना है, टाइम पीरियड आई कैन गेट इट फ्रॉम दिस इज माई एंगल कितना, ये सबटेंड कितना किया इसने, दैट इज आर डी थीटा. दिस इज आर थीटा, दिस इज माई आर इंटू थीटा इज माई दिस एंगल डिवाइडेड बाई वेलोसिटी. दिस इज माई चेंज, दिस इज माई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस. I put it here and I get the delta t. If I divide it by this change in velocity divided by this delta t, I'll get the acceleration.
ओके, सो यहाँ से मैंने पहले अप्रोच से मैंने निकाला कि यहाँ से मेरे वेलोसिटी में कितना चेंज आया यहाँ से यहाँ पे, ठीक है. दैट आई यूज द एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर्स एंड आई कैलकुलेटेड इट एंड आई गॉट द चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. एंड देन टाइम पीरियड के लिए मैंने क्या किया, आई नो कि मेरा यहाँ से यहाँ तक का दिस इज माई आर थीटा द आर्क एंड आई नो माई वेलोसिटी एंड दिस इज नथिंग बट टाइम पीरियड. ओके, right? So distance traveled divided by velocity, that will give you the time period. Okay, so now we'll move on. We'll see the instantaneous acceleration. तो जैसा कि हमने देखा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी क्यों ज़रूरत पड़ी थी हमारे, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी हमारे मोशन को ढंग से डिफाइन नहीं कर पा रही थी. इट कुड नॉट एबल टू गिव अस द कंप्लीट पिक्चर ऑफ आवर मोशन. फॉर इंस्टेंस इन वन सिनारियो वी हैव सीन, वी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर from our home and we have gone to our office and come back home. तो अगर हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी भी ज़ीरो है और फाइनल वेलोसिटी भी ज़ीरो है. तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो गया, चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो. चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो आ गया, दैट मीन्स कि इट इज़ सेइंग कि देयर इज़ नो एक्सेलरेशन, बट the person has moved, motion हुआ है, it has gone, it has stopped somewhere, it has stopped in the office, stopped in the in the traffic lights, and then it started moving, accelerating. So motion is all uniformly accelerated. Motion is it accelerated, positively accelerated, negatively accelerated. So it can be, the motion is not just zero acceleration है. The motion में बहुत सारे factors हैं, but all those factors could not be captured in your v average, acceleration when we are talking about the average. तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए होता है, आई नीड टू सी एवरी इंस्टेंट क्या हो रहा है, इस इंस्टेंट पे क्या उसकी एक्सेलरेशन थी, इस इंस्टेंट पे उसकी क्या एक्सेलरेशन थी, इस इंस्टेंट पे. सो इंस्टेंट वाइज मेरे को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखना है. उसके लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, आई हैव टू जूम इन टू इट, आई हैव टू गो इन साइड द पाथ, आई हैव टू सी के हाउ द रेट ऑफ चेंज इज हैपनिंग. So for that I need the help of calculus. Okay, that we have seen it in the basic maths. We need the help of calculus when we have to see at the instantaneous rate. So instantaneous average acceleration क्या होता है, मेरा total change in velocity over total time. So अगर मेरे को यहाँ से यहाँ के बीच में देखना है, so total change in, so just we are going to draw graphically. We are seeing graphically. So मेरा यहाँ से this is my change in velocity. यहाँ पे मेरी velocity is v1, यहाँ पे मेरी velocity is v2. okay, so change in velocity is what, this to this. okay, so delta v, और ये कितने टाइम पीरियड में हुआ, डेल्टा टी टाइम पीरियड में my change in velocity has come. so it is giving me the average change in velocity or average acceleration. so यहाँ से यहाँ तक का ये this is my average acceleration, but it is not giving me the complete picture, because complete picture is इस point पे acceleration ये था, इस point पे acceleration कुछ और है, इस point पे acceleration कुछ और है, इस point पे कुछ और है, इस point पे कुछ, every point there is a different acceleration and every point there is a different rate of change of velocity, different acceleration है, but that is not been captured here when we talk about only the average. फिर हमने क्या किया, we just do the we just applied the calculus and we have got the instantaneous. वो कैसे नहीं मिला मेरे को, यहाँ पे मेरा जो होता है एवरेज एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डेल्टा वी डिवाइडेड बाय दिस डेल्टा टी. यहाँ पे मैंने क्या किया, इस टाइम पीरियड को आई जस्ट मेक इट स्मॉल. यहाँ से पहले मेरा ये आ गया, ये आ गया एंड देन एट दिस पॉइंट दिस विल बी माई, इतना पास में मेरे आ गया ये, दिस इज सो मच क्लोज कि आई कैन कंसिडर इट टेंड्स टू जीरो. ओके, सो दैट मच स्मॉल टाइम पीरियड में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज गिविंग माई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड विच is a tangent to that curve at this particular point. So इस point पे जो मेरी tangent आ रही है, that is giving me that instantaneous acceleration at this point. okay, so अगर मैं इस point को consider करूँगा, so this point is giving me instantaneous acceleration at this point. so यहाँ पे मेरी ये है, यहाँ पे ये है and यहाँ पे मेरी ये है, so that means it is showing that the acceleration is increasing. so यहाँ पे मेरा slope कम है, यहाँ पे slope और बढ़ गया और यहाँ पे slope और बढ़ गया. so that is showing me my acceleration is increasing. okay, so rate of change of velocity is changing at every instant. so that is the advantage of instantaneous acceleration. okay, so instantaneous acceleration will give you a picture moment by moment. हर point की picture आपको देगा किस point पे कितना rate of change हो रहा है. तो that's why we use instantaneous acceleration. likewise instantaneous velocity, that is giving you the complete picture of the motion कि कहाँ पे body accelerate कर रही है, कहाँ पे de-accelerate कर रही है, कहाँ पे body uniformly move कर रही है, कहाँ पे body stops ले रही है, तो कहाँ पे. so all this picture will be presented through when we consider instant by instant. और instant by instant करने के लिए we took the help of calculus. We zoom into in this curve, zoom into the motion, and each and every point पे we see कि how is the rate of change is happening with the help of calculus. okay, so this is that's why we have to calculate instantaneous acceleration, right? so next we move on.
So next we move on to some mathematical framework, and we'll see certain questions. So as I know, okay, acceleration is nothing but my change in velocity over time. Okay, the rate of change of velocity. So dv by dt is giving me the slope, or it is giving me the instantaneous change in acceleration. Velocity is my dx by dt, instantaneous change in position. Okay, instantaneous change in velocity, instantaneous velocity, that is change in position. So acceleration मेरा dv by dt है, and it is equals to d2x by dt2. ठीक है, ये मेरा dx by dt है. So I have done the double differentiation. Double differentiation is coming this d2x by dt2, and acceleration is dv by dt. Okay, and I can write ये dv by dt को I can do dx by dt का मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. तो यहाँ पे जो मेरा ये dx by dt इज़ नथिंग बट v, dx by dt is nothing but v, और dv by dx को मैंने ऐसे लिख दिया. So I can write acceleration in three ways. I can write acceleration is equals to dv by dx, ठीक है, is equals to dv by dt, and acceleration is equals to d2x by dt2. ओके, सो ये वाली जो टर्म है, हाउ इट इज़, एक इंट्यूशन कैसे देती है. सो इट इज़ जस्ट शोइंग के कर्व में कितना किसी भी कर्व में कितना बेंडिंग है, किसी भी कर्व में कितना बेंडिंग है, दैट शोज this term double differentiation. So suppose one curve मैं ये ले लूँ, this is my one curve, this is my another curve, and this is my third curve, जिसमें सबसे ज़्यादा टर्न लेने की टेंडेंसी है. सो इसमें सबसे ज़्यादा टर्न ले रहा है. सो दैट मीन्स एट दिस इन दिस केस द पुश इज़ वेरी हाई, सो एक्सेलरेशन इज़ वेरी मच. सो एक्सेलरेशन a1, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज़ माई a2, एंड यहाँ पे एक्सेलरेशन इज़ a3. तो एक्सेलरेशन a1 इज़ ग्रेटर देन एक्सेलरेशन a2 इज़ ग्रेटर देन एक्सेलरेशन a3, क्योंकि यहाँ पे मेरी टेंडेंसी जितना कर्व ज़्यादा इट इज़ हैज़ अ टेंडेंसी टू मेक शार्प कर्व, तो वहाँ पे उसकी एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा होगी. यहाँ पे थोड़ा और स्मूथ है, बेटर देन 1, सो इसकी एक्सेलरेशन इससे कम है. यहाँ पे बहुत स्लो पुश मिल रहा है, सो इट इज़ टेकिंग दिस मोशन. सो जितना कर्व स्मूथ होगा उसमें उसकी एक्सेलरेशन उतनी कम होगी. और अगर मेरा स्ट्रेट लाइन बन जाए, दैट मीन्स no push is coming from this side, so no push is coming from this side, so that means there is a zero acceleration from this side. Only the acceleration can be this direction. Okay, so यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे मैक्सिमम टेंडेंसी है कर्व को मूव कराने की, ठीक है, बेंडिंग की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है. सो दैट इज़ काइंड ऑफ अ वेरी हाई एक्सेलरेशन. और अगर मेरी ये हो जाए सिंपल यहाँ से आके, एंड इट गॉट अ सडन टर्न, सो इट इज़ लाइक अ जर्क, very high push is there at this point, that is what we called impulses. Very high jerk is there, sudden change of acceleration is there, so that is what we call impulses, that we'll going to study later. So just giving an intuition of it कि curve के basis पे हम लोग how we defined the acceleration. Smooth curve है, so very less acceleration. Sharp curve है तो acceleration ज़्यादा है. Straight line है तो acceleration is my totally zero, क्योंकि मेरे को यहाँ से कोई भी push नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई भी पुश नहीं, यहाँ पे स्मॉल पुश है, और यहाँ पे बहुत शार्प पुश है, बहुत ज़्यादा पुश है, एक्सेलरेशन बहुत हाई है. तब ये कर्व की स्पीड बहुत फास्ट चेंज कर रही है, रेट ऑफ चेंज इज़ वेरी फास्ट. ओके, सो दिस इज़ व्हाट माय कर्व शोज. नाउ विल स्विच ऑन टू सम क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे हमारे को दे रखा है वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम लाइक दिस फंक्शन v इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टी. हमें से पूछा है कि पार्टिकल कितने टाइम पीरियड के लिए रिटार्ड करेगा. रिटार्डेशन का क्या होता है कि जब मेरा वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इज अपोजिट डायरेक्शन, देन ओनली द पार्टिकल रिटार्ड. अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, मोशन वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो इट विल कीप ऑन एक्सेलरेटिंग. देयर इज नो रिटार्डेशन इन दिस मॉलिक्यूल. सो मे बी यहाँ से इस पॉइंट तक इट्स की वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग and its acceleration in this side, but यहाँ के बाद से acceleration will get opposite side. So इसके बाद से it started retarding. So जब भी acceleration और velocity के बीच में मेरा opposite होता है, they are in opposite direction, या तो acceleration इधर है, velocity इधर है, velocity acceleration, ठीक है, या मेरा velocity इधर है, acceleration इधर है. So these are the cases when I have my retardation in 1D. Okay, whenever it is opposite. So whenever it is opposite, that means I know dot product of this will be less than 0. Whenever it is opposite, dot product of this is less than 0. Okay, so now we will see that it is never supporting. A is never supporting, it is always opposing. So we have seen in the geometrical interpretation, okay, it is all whenever it is always opposing, so ये हमेशा opposite side में होगा. So इसका dot product हमेशा less than 0 होगा, acceleration और velocity का. Okay, so now we'll see. इससे मेरा एक्सेलरेशन निकालेंगे हम.
के रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विल डू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी बाई डी टी करेंगे. आई गॉट 2t minus 1. नाउ आई डू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस. dot product of this is less than 0, so I'll take this is t, this my velocity, this my acceleration, and this is less than 0. इसको मैंने ओपन किया, t minus 1, 2t minus 1. now इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, t can this is t can never be 0. t is always positive. टाइम पीरियड हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में करेगा. t can never be 0. this is always positive. either this can be positive or this is negative, then only this situation, this inequality will be satisfied, or this is negative, this is positive, then only this situation is this condition will be satisfied, less than 0 वाली. तो अब देखते हैं दोनों कंडीशन को हम लोग कंसिडर करते हैं. विल सी द ओवरलैपिंग किस टाइम पीरियड में हो रहा है. ठीक है, तो पहले मैंने लिया कि दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव. ठीक है, तो यहाँ से मेरी वैल्यू है t इज लेस देन 1 एंड t इज ग्रेटर देन 1/2. सेम मैंने यहाँ पे किया कि इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, इसको नेगेटिव. t minus 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड 2t minus 1 लेस देन 0. यहाँ से मेरी वैल्यू है t ग्रेटर देन 1, t जस्ट अ सेकेंड, हाँ यस या, सो t यहाँ से मेरी वैल्यू है t ग्रेटर देन 1, यहाँ से वैल्यू है t लेस देन -1/2. नाउ वी विल ड्रॉ इट ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं, सपोज मेरा ये हो गया 0, 1/2, 1 एंड 1. यहाँ पे मेरा बता रहा है t इज ग्रेटर देन 1, t इज ग्रेटर देन 1 मीन्स दिस वाली, दिस इससे ज़्यादा बता रहा है मेरा. यहाँ पे बता रहा है t इज लेस देन 1/2, दिस वन. सो देर इज़ नो कॉमन थिंग इज, सो इन दोनों में कोई कॉमन चीज़ नहीं है. एक इस डायरेक्शन में बता रहा है, एक इस डायरेक्शन में. देर इज़ नो कॉमनलिटी इन दिस, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. सो वी कैन से दिस इज़ नॉट वैलिड. ओके, नाउ इसको कंसिडर करते हैं. इट इज़ सेइंग कि t इज लेस देन 1 but t is more than 1/2. t is less than 1 will be coming in this side and t greater than 1/2 is going this side. So this is a common factor which is coming in. Okay, this is a common factor which is coming in. ये common factor is the time period कि जब मेरा acceleration और velocity is in opposite direction. Otherwise they are either in same direction, otherwise all the time they are in the same direction. Okay, so only this time they are in the opposite direction. वो time period कितना आ गया, t less than 1 and t greater than 1/2. Okay, so here main concept is this कि जब भी मेरा whenever I have to find out कि a vector और दो वेक्टर दोनों opposite हैं, whenever it is opposite, so उनका dot product will always be less than 1. Okay, dot product will always be less than 1. Clear? So we'll move on to the next question. So next question में मेरे को बोला गया है जस्ट, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के लिए हम लोग कर लेते. नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को भी दिया गया पोजीशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्सिस से इस तरीके से चेंज हो रही है 2t² - t³. ठीक है, मेरे को पूछा मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस एट व्हाट इंस्टेंट, टाइम पीरियड निकालना है. देन आई हैव बीन आस्क्ड कि मोशन ऑफ द पार्टिकल बताओ, किस तरीके से मोशन कर रहा है, क्या वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, कहीं पार्टिकल स्टॉप हो रहा है, नहीं हो रहा है, पार्टिकल रिटर्न कर रहा है. तो ऑल दोज थिंग्स विल बी कमिंग अंडर द मोशन. देन आई बीन आस्क्ड कि डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकेंड एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 4 सेकेंड. ये दोनों चीज़ें पूछी गई हैं. देन आई बीन आस्क्ड कि पार्टिकल की एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ इन द फर्स्ट 3 सेकेंड. देन आई बीन आस्क्ड पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताओ कि जब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, तो एक्स की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जब है, और एवरेज एक्सेलरेशन बतानी है बिटवीन द टाइम पीरियड 2 to 4 सेकेंड. सो हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम, लेट्स सी. सो मेरे को दे रखा है माई एक्सिस, सो माई एक्सिस गिवन टू मी इट इज 2t² is 2t² minus t³. This is cube, this is t³. So now at x is equal to 0, at t is equal to 0, x is equal to 0, origin पे है. ठीक है, now I'll find out the relationship of velocity with time. So what I will do, I'll do dx by dt. I've got this relation 4t minus t³. Okay, now velocity किस पॉइंट पे 0 आ रही है, we'll see, क्योंकि यहाँ पे मेरे से पूछा गया मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट. ओके, मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पूछा गया. दैट मीन्स अगर मेरी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होती तो उसका मैक्सिमम कभी नहीं आता. इट विल कीप ऑन मूविंग, मैक्सिमम कभी नहीं आता. यहाँ पे मैं है कि एक्सेलरेशन एट सर्टेन पॉइंट ऑफ द टाइम वो अपोजिट टू वेलोसिटी है. अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इधर आ गई, तो क्या हो गया मेरा, ये इट मूव डाउन, इट मूव्ड लाइक दिस एंड इट गॉट 0 एट सर्टेन पॉइंट. उसके बाद कुछ टर्न अराउंड लिया इसने. ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है.
तभी वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आया है, नहीं तो वो मैक्सिमम नहीं आता, नहीं तो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की दोनों की डायरेक्शन सेम होती, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ओके, सो उनकी डायरेक्शन अपोजिट हुई है, दैट्स वाई इट्स बीन आस्क्ड कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पहले तो देखेंगे वेलोसिटी किस पॉइंट पे जीरो हो रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, हमारा टाइम पीरियड आ गया, हमारा वेलोसिटी आ गई इन द सेंस ऑफ टाइम पीरियड। सो आई विल फाइंड आउट द वैल्यू कि किस पे वेलोसिटी मेरी, किस टाइम पीरियड पे वेलोसिटी मेरी जीरो हो जाएगी। वो कैसे करेंगे, इसको मैंने ओपन लिया, टी कॉमन लिया, दिस विल बी देयर। सो टी मेरा जीरो पे और टी इज इक्वल टू 4/3 पे आई हैव गॉट माई वेलोसिटी एज जीरो। सो वेलोसिटी जीरो का मतलब टी एट द बिगनिंग बिल्कुल स्टार्ट पे, और टी समथिंग 4/3 पे जाके इट्स वेलोसिटी गेट जीरो। ओके, सो इट इज गोइंग लाइक दिस एंड इट्स गॉट जीरो एंड इट टर्न अराउंड फ्रॉम हेयर, लाइक दैट शुड बी द मोशन ऑफ पार्टिकल। लेट्स सी विद द एक्सेलरेशन कि एक्सेलरेशन कैसे एक्ट कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी इज जीरो, दैट मीन्स पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, तो दैट मीन्स इनिशियली इस पर कुछ पुश मिला होगा, एक्सेलरेशन मिला होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ी होगी पहले। ठीक है, इस वेलोसिटी इंक्रीज हुई होगी, फिर उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिला होगा, पहले इनिशियली प्लस ए डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिला, फिर कुछ पॉइंट पे जाके अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तभी उसकी वेलोसिटी जाके जीरो हुई एक पॉइंट पे, फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करी होगी। दैट शुड बी द केस। लेट्स सी, सो एक्सेलरेशन विल डू अ dv/dt। मेरे पास v और t की टर्म्स यहाँ पे है, तो इसको मैंने dv/dt किया, आई गॉट 4 - 60। अब मैं देखता हूँ कि मेरी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में कब तक पॉजिटिव है और कब तक नेगेटिव है, और रिटार्डेशन फाइंड आउट करने के लिए मेरे को देखना है कि कब मेरा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन, कब मेरी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन, एट दैट पॉइंट द रिटार्डेशन इज हैपनिंग। लेट्स सी दैट। सो यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन टाइम के टर्म में आ गया, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो कब होगी, व्हेन द टाइम इज लेस देन 2/3। सो टाइम जीरो से स्टार्ट करके 2/3 तक यहाँ पे मेरी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तभी मेरा पार्टिकल जो है वो स्टार्ट फ्रॉम जीरो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो एंड स्टार्ट इट गेन सम स्पीड एंड देन इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा एंड इट स्टार्टेड रिड्यूसिंग इट्स स्पीड एंड इट गॉट जीरो। ये हुआ है। तो 0 से 2/3 तक मेरी एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, दिस इज माई वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नाउ अब देखते हैं वेलोसिटी का, कि वेलोसिटी कब ग्रेटर देन जीरो है। ओके, सो नाउ मेरे पास ये टर्म थी, इस टर्म को मैंने लिख दिया वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो, टी ग्रेटर देन जीरो, टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, और टी इज लेस देन जब 4/3 से होगा, देन आई विल गेट माई वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, जब दिस टर्म इज ग्रेटर देन जीरो कब होगी, जब मेरा टी लेस देन 4/3 है। सो दैट मीन्स मेरी वेलोसिटी, सो विल सी इट हेयर, सो आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर जीरो से स्टार्ट किया, 2/3 तक मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, ओके, इंक्रीज हो रही है, माई वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बिकॉज माई एक्सेलरेशन इज अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। 2/3 तक मैंने देखा, अप टू 2/3 माई एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, 2/3 पे जाके यहाँ पे जाके माई एक्सेलरेशन स्टार्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ v, सो particle started retarding from this point onward, particle retarding from this point onward particle retarding, और 4.3 पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ठीक है, यहाँ से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होनी शुरू हुई, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, यहाँ पे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, 0 से 2/3 तक वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, फिर 2/3 से वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। सो अगर पता करा जाए वेलोसिटी मैक्सिमम इज 2/3 पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज हुई, और डिक्रीज होती होती इट गॉट जीरो एट 4/3, और उसके बाद पार्टिकल ने अपोजिट डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे को दे रखा है एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव आफ्टर 2/3। इसके बाद एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, बिकॉज पॉजिटिव मेरा यहाँ पे आया था, सो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव आफ्टर दिस 2/3, सो एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, टाइम पीरियड 2/3 के बाद से, सो एक्सेलरेशन इसके बाद से हमेशा इस डायरेक्शन में लगता रहेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता रहेगा, तो पार्टिकल विल कीप ऑन मूविंग एंड इंक्रीजिंग इज स्पीड इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में हो गई और एक्सेलरेशन भी मेरी इस डायरेक्शन में हो गई। ठीक है, सो एक बार और देख लेते हैं मोशन। टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू जीरो पे मेरा वी भी जीरो है। ठीक है, वी जीरो है, और मेरे को एक्सेलरेशन मेरे को बता रखा है टाइम लेस देन 2/3 तक, 0 से 2/3 तक एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, सो इस पॉइंट पे जीरो है। और मेरे को ये भी बताया है कि अगर कोई पार्टिकल जीरो से स्टार्ट होकर फिर से जीरो हो रहा है, दैट मीन्स उस पर पहले एक्सेलरेशन लग रहा है, फिर वो डीएक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन में ए है, और पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव किया, अपनी वेलोसिटी गेन किया 2/3 तक, और उसके बाद एक्सेलरेशन मेरा अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। अब ये डीएक्सेलरेट करने लगा एंड वेलोसिटी गॉट जीरो एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे वेलोसिटी गॉट जीरो।
यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई इस पॉइंट्स पे, बट एक्सेलरेशन इज स्टिल एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो पार्टिकल यहाँ से टर्न अराउंड होकर इट स्टार्टेड गोइंग, वेलोसिटी अब यहाँ पे इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन एंड इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. नाउ द वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. इसकी वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज करती जाएगी इन द -x डायरेक्शन. सो दिस विल बी द मोशन. इतना समझ में आ गया. देन द क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल. ओके, अब मेरे से पूछा गया कि मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है. इसका मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कब आएगा मेरा, जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा. ठीक है, पॉजिटिव पूछा है, मैक्सिमम पॉजिटिव. नेगेटिव में तो वो आगे आगे जाता जाएगा. मैक्सिमम पॉजिटिव पहुँचा है यहाँ से यहाँ तक का. ये कब आएगा, 4/3 पे, जब मेरा वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. टाइम आ गया मेरा 4/3 को. अगर मेरे को चेक करना है कि वेदर इट इज़ अ मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट, यू कैन डू द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस. ठीक है, और उस पर आप देखोगे इट विल कमिंग एज अ लेस देन जीरो. वी हैव सीन इट इन मैक्सिमम मिनिमा केसेस कि मैक्सिमम पे क्या होता है, स्लोप इज पॉजिटिव, slope will get zero and slope will start decreasing. Okay, so this will get it. Now I put the value of 4/3 here in this equation. X की equation में 4/3 डाला, यहाँ पे 4/3 डाल के I've got 32/7. so this positive displacement जो maximum आई 32/7, 32/27. this is my positive displacement आ गई. ठीक है, now मेरे से पूछा गया है कि मोशन ऑफ द पार्टिकल ऐसे होगा, यहाँ से स्टार्ट होकर एक्सेलरेट करेगा 2/3 तक, फिर डी एक्सेलरेशन करेगा, जीरो हो जाएगा पार्टिकल का मोशन 4/3 पे, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा. दिस इज माई मोशन ऑफ द पार्टिकल. ओके, नाउ द थर्ड थिंग, मेरे से पूछा गया डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकेंड. फर्स्ट 3 सेकेंड का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ पे तो जीरो हो गई, और ये कितना सेकंड है, 1.33 सेकंड है. यहाँ पे जीरो हो गई और फिर यहाँ से टर्न अराउंड ले लिया, तो डिस्टेंस इज़ नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. जब भी टर्न अराउंड होता है डिस्टेंस इज़ नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. सो T3 का मतलब है वापस यहाँ पे आया और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे गया. ठीक है, सो वापस आने तक यहाँ पे वापस आके फिर इधर गया. सो आई हैव टू फाइंड आउट. तो डिस्टेंस के लिए मेरे को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, प्लस दिस एंड दिस. सो दिस ओवरऑल मेरे को ये पूरा मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ABC. तो ये टोटल मेरा डिस्टेंस होगा. अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा, डिस्प्लेसमेंट इज़ नथिंग बट माई C ओनली. अगर मेरे को 3 मिनट्स में 3 सेकेंड्स में पूछा तो डिस्प्लेसमेंट मेरा C आ जाएगा ये. अगर मेरे को डिस्टेंस पूछा तो इट विल बी A + B + C. ये तीनों पाथ लेंथ यहाँ से यहाँ तक का जीरो जहाँ पे हुआ, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में. टोटल मेरा फिर डिस्टेंस आ जाएगा. अब देखते हैं डिस्टेंस कैसे निकालेंगे. डिस्टेंस मैंने बताया कि 0 से T/3 यहाँ से यहाँ तक का मेरा, ठीक है, पॉजिटिव हुआ, पहले यहाँ से यहाँ तक देखा, फिर मेरा T/3, फिर पहले मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट देखा. ठीक है, 0 से 4/3 तक का मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आया, और फिर मैंने 4/3 से 3 तक का डिस्प्लेसमेंट ले लिया. ठीक है, 4/3 से 3 तक का डिस्प्लेसमेंट ले लिया. सो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया. दैट इज़ गोइंग टू गिव मी माई डिस्टेंस. अगर मैं A और ये पूरा का पूरा मेरा B है, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया. अगर मैं T = 0 से 3 तक का लूँगा, सो इट इज़ गोइंग टू गिव मी दिस ओनली. ये बस इतना आएगा. दैट इज़ नॉट अ डिस्टेंस, दैट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट. अगर तो इसलिए मेरे को, क्योंकि मुझे पता टर्न अराउंड किया है, तो मैंने क्या किया, पहले इसका डिस्प्लेसमेंट निकाला 0 से 4/3, फिर मैंने 4/3 से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया 3 सेकेंड का. वो कैसे किया, सो मैंने स्प्लिट कर दिया टाइम पीरियड को 0 to 4/3. तो यहाँ पे मैंने 0 to 4/3 वैल्यू डाली इस वाले इक्वेशन में. दिस इक्वेशन यहाँ पे पहले T मैंने 4/3 डाला, फिर मैंने T0 डाला, प्लस फिर मैंने T की वैल्यू 3 डाली यहाँ पे, माइनस 4/3, बिकॉज मेरे को T 4/3 से 3 के बीच में चाहिए ना. सो T से पहले T की वैल्यू 3 डाली मैंने, फिर T की वैल्यू मैंने 4/3 डाली. ओके, 4/3 डाली. तो इससे मेरा जो इक्वेशन, इससे मैंने सॉल्व किया, तो माई वैल्यू इज़ 307/27. ठीक है, ये क्लियर है कि डिस्टेंस कैसे निकाला, क्योंकि मुझे पता है टर्न अराउंड लिया पार्टिकल में से पूछा T = 0 से 3 के बीच में टाइम पीरियड. जब पार्टिकल ने टर्न अराउंड ले लिया 1.33 सेकेंड पे. ठीक है, सो दैट मीन्स कि ऑब्वियसली डिस्टेंस विल नेवर बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से गया, टर्न अराउंड लेके इधर आ गया. ठीक है, अब जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो केवल इतना आएगा. डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस वन ओनली, बट डिस्टेंस मेरे को चाहिए यहाँ से लेकर पूरा ये पूरा पाथ लेंथ चाहिए मेरे को. ये पूरा मेरा डिस्टेंस चाहिए. इसके लिए मैंने क्या किया, पहले मैंने यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट निकाली, कितनी आई, फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट निकाली, कितनी आई. ठीक है, so this is giving me the exact distance. Next is displacement in first 4 second. That is quite easy. I'll just put 4 second here, 0 से 4 second के बीच में, and I'll get my displacement here. It is simple. Then मेरे से पूछा है पार्टिकल की एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम.
ठीक है। तो टोटल टाइम पीरियड, टोटल डिस्टेंस कितना है मेरा, ये 3 सेकेंड में, और टोटल टाइम कितना है 3। और अगर मेरे टोटल एवरेज वेलोसिटी निकालना है फर्स्ट 3 सेकेंड में, दैट विल बी, अगर मैं एक्स की वैल्यू 3 रखूँ, दैट इज कमिंग, एक्स की वैल्यू 3 रख के इन दिस, दैट आई विल गेट द डिस्प्लेसमेंट, total displacement, and I'll divide it by time, I'll get the value of average velocity. फिर मेरे से पूछा गया है give me the what are the particle instantaneous acceleration at an instant when the maximum displacement मुझे पता है, x is equals to at t is equals to 4/3 पे है. Now I put this 4/3 into this equation. Okay, this is my acceleration, instantaneous acceleration. So I put this 4/3 here and I got the value of इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, यहाँ पे t की वैल्यू 4/3 रख दी. नाउ मेरे से पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन द टाइम पीरियड दिस टू दिस. तो एक्सेलरेशन मेरा ये दे रखा है, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन दिस टाइम पीरियड. तो पहले मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालूंगा एट द टाइम पीरियड 4, फिर माइनस एक्सेलरेशन निकालूंगा एट द टाइम पीरियड 2. सो दैट इज माई एवरेज एक्सेलरेशन एट बिटवीन 2 और 4. Okay, so average acceleration is my velocity final minus velocity initial divided by time delta t. So यहाँ से इस वाले इक्वेशन में डालूंगा, सॉरी नॉट इन द दिस वन, इस वाले इक्वेशन में I'll put t is equals to, पहले 4 पे डालूंगा, then t is equals to 2 पे डालूंगा, that t is equal to 4 is my final, t is equal to 2 is my initial. So यहाँ पे v final निकालूंगा, v initial निकालूंगा, and v final minus v initial divided by total time period मेरे को दे रखा है 2 सेकेंड, इसको डिवाइड करूँगा 2 सेकेंड से, and I'll get my average acceleration. Okay, v final minus v initial by delta t मेरे को दे रखा है 2 सेकेंड. Okay, so this question is very good. इस क्वेश्चन में काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए वन डायमेंशन मोशन के. सो दिस क्वेश्चन, just go through this question once again, and if you have any doubt just ask me. Okay, so next we'll move on to this question. ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्टूडेंट स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस, अगर वो 12 किलोमीटर पर की स्पीड से चल रहा है तो इट रीचेज ए स्कूल 3 मिनट्स लेट. अगले दिन उसने क्या किया, 1 किलोमीटर अपनी स्पीड बढ़ा दी, 13 से स्टार्ट किया, देन ही रीचेज स्कूल 3 मिनट्स अर्लियर. ओके, सो विल सी कि टोटल इसका जो माई डिस्टेंस इज एक्स, सपोज स्कूल का डिस्टेंस ले लिया मैंने एक्स. ओके, सो नाउ अगर वो 12 से चल रहा है तो कितना टाइम पीरियड लग रहा है, x/12 कितने 3 मिनट लेट पहुंच रहा है जो एक्चुअल टाइम है. सो एक्चुअल टाइम इज t, उससे 3 मिनट लेट है, 3/60 3 मिनट लेट पहुंच रहा है. सेकेंड इज, अगर वो सेम डिस्टेंस 13 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, देन उसका जो टाइम पीरियड लग रहा है वो जो एक्चुअल टाइम पीरियड से 3 मिनट कम लग रहा है. ठीक है, तो मेरे पास एक्स से 2 इक्वेशन आ गई एंड 2 मेरे पास वेरिएबल हैं, एंड आई कैन सॉल्व इट एंड आई गेट द वैल्यू ऑफ 0.6. ओके, सो इसको ग्राफिकली देखें तो ये मेरे को दे रखा है कि दिस इज़ माई एक्स 0 to x. तो पहले 12 से चला तो ये t+30 पे यहाँ पे मूव किया, फिर ये 13 से चला. दिस इज़ माई स्लोप क्या बताता है एक्स टी ग्राफ का, इट इज़ माई वेलोसिटी. स्लोप इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है. अगर ये 13 पे आ गया, पहले 12 से चला तो स्लोप मेरा कम था. ठीक है, अगर मैं और कम कर दूँ तो इट इज़ दिस स्लोप, 11 कर दूँ तो मैं, ठीक है. अगर ये 11 से चला तो सेम डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया इस t प्लस सम सेकेंड्स. ओके, तो यहाँ पे बोला कि 12 अगर ये 12 से चला है तो इट्स कवर द सेम डिस्टेंस x इन t+30 सेकेंड. अगर ये 13 से चला, 13 मतलब कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई. वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो गई. दिस इज स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व, दिस इज 13. ओके, स्लोप इंक्रीज कर गया ये 13. तो यहाँ पे सेम डिस्टेंस इसने एक्स ट्रैवल किया t-30 सेकेंड में. ठीक है, सो इट इज़ काइंड ऑफ अ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन. और इन दोनों का एरिया बहुत सेम है. ठीक है, क्योंकि विल सी इट इन द ग्राफिकल के वी टी कर्व जो होता है दैट इज़ गोइंग टू गिव यू कि कितना एक्यूमुलेशन ऑफ एरिया हो रहा है. दोनों का एरिया सेम है. अगर मैं दोनों का एरिया इक्वेट कर दूँ एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ टी ऑल्सो. 13 इंटू दिस एंड 12 इंटू दिस बोथ एरियाज आर सेम. दिस एरिया पहले 12 का मैंने velocity ली and then I'll take 13 and I just take both the areas. I'll take both the areas, it is the same because जो accumulation हो रहा है that is x only, कि कितना distance चल रहा है वो x चल रहा है दोनों से. Okay, so that's another way to solve this, so just look into it. So some statements हैं, we'll see कि whether these statements are right or wrong. Is average speed
is magnitude of average velocity. Let's see, okay, average velocity, average speed is my total displacement. Oh, sorry, average speed is total distance over time, or average velocity is my total displacement over time. So it is not equal. Displacement, ये दोनों इक्वल कब किस केस में होंगे? When there is a uniform motion. कहीं कोई पुश नहीं मिल रहा, कहीं कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रहा, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी अगर आ रहा है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है पार्टिकल और इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रहा है, देन आई कैन से कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम. अगर इन 1D मोशन में अगर इसका एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन, आई कैन नॉट से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम, बिकॉज ये पार्टिकल आगे जाके रुक जाएगा और फिर टर्न अराउंड हो जाएगा. और जब भी पार्टिकल में टर्न अराउंड आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल नेवर बी इक्वल टू डिस्टेंस. Okay, so average speed is not the magnitude of average velocity, right? They are having a different formulas, different way to calculate. अगला पूछा है जीरो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड येट एक्सेलरेटिंग. दैट ऑल्सो वी हैव सीन. अगर पार्टिकल मेरा v इधर मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन इधर है, सो पार्टिकल विल मूव ऑन एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इट्स वेलोसिटी विल गेट जीरो, बट एक्सेलरेशन इज स्टिल इन दिस डायरेक्शन, सो पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. सो येस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन बी जीरो एंड येट एक्सेलरेटिंग. ये हमने मोशन इन ग्रेविटी भी देखते हैं. पार्टिकल ऊपर जा रहा है, एट दिस पॉइंट वेलोसिटी विल गेट जीरो एंड देन g is still there and the particle coming down. Okay, so there also zero instantaneous velocity हो सकती है yet accelerating. नेक्स्ट देखते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन है येट स्पीडिंग अप. ओके, सो ये भी हमने देखा था कि पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है v, ओके, सो अगर एक्सेलरेशन मेरा इस डायरेक्शन में है तो पार्टिकल एक पॉइंट पे जाके v इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा एंड देन टर्न अराउंड एंड स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन. सो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव डायरेक्शन, बट येट आफ्टर दिस point when the velocity gets zero, its velocity is increasing in opposite direction. Velocity is speeding up in this direction. इसकी velocity is increasing up in this direction and acceleration is negative in this direction. ठीक है, okay, so negative acceleration yet speeding up. Magnitude of average velocity is equals to average speed. So magnitude of average velocity can be equal to average speed when the displacement is equal to distance. वो कब होगा कि जब मेरा acceleration and velocity is in the same direction, then only my average velocity and average speed will be equal, because in that time period only my turn of the particle will not happen, so distance will always be equal to displacement. Okay, now we'll move on to our नेक्स्ट टॉपिक, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे. मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब कि इट कैन मूव इन दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, बट इट इज़ ऑलवेज मूविंग इन वन डायमेंशन ओनली. ओके, या तो इधर जाएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, या इधर आएगा, इधर आएगा. वन डायमेंशन मूव करेगा. इट इज़ नॉट के इट इज़ नॉट गोइंग टू मूव लाइक दिस वे. ओके, इट्स नॉट गोइंग टू मूव लाइक दिस वे. सो कोई कर्व नहीं बनेगा, जस्ट वन लाइन, जस्ट स्ट्रेट लाइन मोशन. स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग द वेक्टर विल जस्ट डू द स्केलर एडिशन बाय कंसीडरिंग द साइड्स. के इधर की साइड मैंने पॉजिटिव ले ली और इधर की साइड मैंने नेगेटिव ले ली. ठीक है, ये कंसीडर करके आई कैन डू सिंपल स्केलर एडिशन. स्केलर मेथड हम लोग स्केलर नॉर्मल ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ एल्जेब्रा एडिशन और सब्सट्रैक्शन लगा सकते हैं. ठीक है, सो नाउ इंस्टेड ऑफ वेक्टर वी यूज एल्जेब्रिक. तो नाउ कैसे क्या सिचुएशन बनेगी मोशन इन स्ट्रेट लाइन? या तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन कैन बी जीरो, सो इट इज़ कीप ऑन मूविंग विद सेम वेलोसिटी. ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड अ यूनिफॉर्म मोशन. कि मेरा व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो, कोई पुश कहीं से नहीं आ रहा, सो पार्टिकल बस अपना सेम v वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, कहीं से कुछ भी चेंज नहीं आ रहा. ठीक है, ये सेम वेलोसिटी से मूव करता रहेगा. यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो पार्टिकल विल बी स्पीडिंग अप. पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, पार्टिकल विल बी स्पीडिंग अप. ओके, इसमें क्योंकि एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में है, पुश भी आपको सेम डायरेक्शन में मिल रहा है. सपोज यहीं पे आप मूव कर रहे हो और यहीं से पीछे से ही पुश मिल रहा है, तो विल कीप ऑन एक्सेलरेटिंग. अगर मेरी वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आप क्या करेंगे, पहले विल स्टार्ट रिटार्डिंग, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट रिटार्डिंग, विल गेट वेलोसिटी एट जीरो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, और उसके बाद वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. तो दैट मीन्स आपकी वेलोसिटी पहले रिटार्ड होनी शुरू होगी, retard, okay, it got zero at certain point and then it started increasing in the opposite direction. ठीक है, this is
दिस केस, एंड ये केस में हमने देखा था हाउ इट इज़ कि इट इज़ दिस केस. तो इस पॉइंट पे एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो स्लोप ऑफ दिस कर्व इज पॉजिटिव स्लोप, बट वेलोसिटी इज नेगेटिव हेयर, बट नेगेटिव वेलोसिटी, बट नेगेटिव साइड में कम हो रही है वेलोसिटी. ये नेगेटिव वेलोसिटी है बट नेगेटिव साइड में कम हो रही है और वो जाके एकदम से ज़ीरो हो जाएगी एक पॉइंट पे, और फिर उसके बाद ये वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीजिंग होने लग जाएगी. ठीक है, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन इंक्रीजिंग वेलोसिटी. नेक्स्ट देखता हूँ मैं. नेक्स्ट में क्या है मेरे को दे रखी है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, दैट मीन्स स्लोप इज नेगेटिव. ठीक है, एक्सेलेरेशन अपोजिट साइड में. तो यहाँ पे भी क्या होगा, पार्टिकल पहले वेलोसिटी से मूव करेगा, फिर रिटार्ड होता जाएगा, बिकॉज एक्सेलेरेशन अपोजिट. यहाँ पे वेलोसिटी इसकी ज़ीरो हो जाएगी और फिर इसकी एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट स्पीडिंग अप इन द अपोजिट डायरेक्शन. ओके, स्लोज डाउन फर्स्ट, वेलोसिटी गेट जीरो, स्पीडिंग अप इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी लाइक दिस कर्व. यहाँ पे क्या है कर्व का, स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है वीटी कर्व का, इट इज़ एक्सेलरेशन, सो स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव. तो वेलोसिटी पहले क्या की है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, बट डिक्रीज करती जा रही है. वी सीन है ना, पहले पॉजिटिव है बट डिक्रीज करती जा रही है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, एट दिस पॉइंट इट गॉट जीरो. इस पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जीरो हो गई और फिर इस डायरेक्शन में स्पीडिंग अप, इस डायरेक्शन में मेरा नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी स्पीडिंग अप. यहाँ पे देखा मैंने नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी स्पीडिंग अप. ओके, सो दिस इज हाउ मोशन इन स्ट्रेट लाइन हैपन्स. कि या तो पुश आपको पैरेलल मिल रहा है या एंटी पैरेलल मिल रहा है. देयर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ पुश, देन ओनली यू कैन से द मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन. देन विल सी द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि जो पुश मिल रहा है वो एक कांस्टेंट पुश मिल रहा है आपको. मतलब ऐसा नहीं है कि पुश एकदम से बहुत फास्ट मिला, फिर स्लो पुश मिला, फिर फास्ट पुश मिला, फिर स्लो पुश मिला, ऐसा नहीं है. ये कांस्टेंट कंटिन्यूस पुश मिल रहा है. कांस्टेंट कंटिन्यूस पुश का मतलब है कि दिस आपकी ये वेलोसिटी कर्व है, ये टाइम है. ठीक है, वेलोसिटी टाइम कर्व. कर्व, डोंट वरी, वी आर गोइंग टू सी इन द कमिंग लेक्चर. हम लोग ग्राफ्स जब पढ़ेंगे हम लोग सारे कर्व डिटेल में फिर से जाके देखेंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंट्यूशन कि अगर ये कर्व है तो इसका जो स्लोप होगा दैट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ दिस कर्व. इसका स्लोप है सिंपल सेम कांस्टेंट पुश मिल रहा है, एक ही स्लोप है, कोई चेंज नहीं हो रहा स्लोप में. ठीक है, अगर मेरी वेलोसिटी कर्व ये होता तो मैं स्लोप इज कीप ऑन चेंजिंग. यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, ठीक है, यहाँ से फिर नेगेटिव स्लोप स्टार्ट हो गया. ठीक है, यहाँ से फिर पॉजिटिव स्लोप स्टार्ट हो गया. ठीक है, ये पॉजिटिव, यहाँ से फिर नेगेटिव स्लोप स्टार्ट हो गया. तो माई स्लोप इज कीप ऑन चेंजिंग. ठीक है, दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है कांस्टेंट पुश मिल रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. एंड दिस इज माई नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज द एक्सेलरेशन इज कीप ऑन चेंजिंग. फर्स्ट द एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, इट गॉट जीरो, then it started increasing, then it got zero, then it started decreasing zero, like that it is happening. ठीक है, accelerated, this is non-uniformly accelerated motion. और uniformly accelerated motion में I am getting a constant push and my acceleration is constant, my velocity is changing linearly that we have seen. This is my VT curve. It can be this or it can be this also, both the way. Okay, so but my acceleration is constant. Acceleration constant. Acceleration क्या होता है, slope of VT, this theta, this slope, so that is constant. Okay, so that is what the velocity changes linearly and my acceleration is constant and I'm getting a constant push. So acceleration is both in magnitude and direction remain constant that we have seen. Non uniformly अगर सिंगल डायमेंशन में अगर ये है तो नॉन यूनिफॉर्मली, अगर ये A1 नॉन यूनिफॉर्म, इट इज़ नॉट ए यूनिफॉर्म मोशन. हाउ कि पहले वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आई, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई. ठीक है, तो कर्व पहले मेरा वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, देन ऑल ऑफ अ सडन वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है और फिर वो नेगेटिव साइड में डबल उससे डिक्रीज करती जा रही है. ठीक है, सो दिस इज लाइक अ वीटी कर्व. सो पहले तो वेलोसिटी उसकी स्लोप पॉजिटिव है, इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, फिर सेम स्लोप है बट अपोजिट डायरेक्शन में वो डिक्रीज करना शुरू हो गया. ठीक है, दिस इज -A1, दिस इज +A1. ठीक है, डिक्रीज करना शुरू हो गया और फिर उसका डबल स्लोप बढ़ गया. ठीक है, ये एंगल 2 थीटा हो गया, ये थीटा था तो ये एंगल डबल हो गया, ये डबल से डिक्रीज होना शुरू हो गया इन द अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव. अपोजिट डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. सो दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन. इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज द वेलोसिटी इज चेंजिंग लीनियरली बट स्टेडीली नहीं इंक्रीज हो रही है. ठीक है, वो बढ़ रही है, कम हो रही है. और यहाँ पे
acceleration is not constant, it is changing. First it is changing its direction from this to this, and then it is speeding up also. इसकी velocity, इसके magnitude भी increase हो रहा है. That's why we say this motion is not a uniform motion. Uniform motion में क्या होगा, पार्टिकल इस मोशन में मूव कर रहा है तो इट इज़, इसकी वेलोसिटी इज सेम, नो चेंज इन वेलोसिटी, और इस डायरेक्शन में भी होगी तो वेलोसिटी इज सेम, नो चेंज इन वेलोसिटी, देन वी कैन से द पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म मोशन, राइट. सो 1D मोशन इज इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी इधर पैरेलल और एंटी पैरेलल, और एक्सेलरेशन इज 0, देन वी कैन से इट इज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इधर इन पैरेलल और एंटी पैरेलल. यू ये है, या तो इसके डायरेक्शन में होगी तो इट द वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, इस डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. अगर मेरी पुश जो है या एक्सेलरेशन है किसी एंगल पे आ रही है, देन वी कैन नॉट से इट इज़ अ 1D मोशन, इट विल बी अ 2D मोशन बिकॉज इट विल चेंज द डायरेक्शन. सो सपोज ये पॉइंट है यू, ठीक है, इस पे अगर 1D के लिए क्या चाहिए मेरे को, एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन और इज इन दिस डायरेक्शन, देन ओनली आई कैन से इट विल मूव इन द 1D मोशन. सपोज माई एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आ गए, ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा. तो ए कॉस थीटा इसको लीनियरली मूव कराएगा और ए साइन थीटा इसकी डायरेक्शन चेंज करेगा. सो नाउ इट हैज़ बिकम अ 2D मोशन रादर देन 1D मोशन बिकॉज इट इज़ चेंजिंग द डायरेक्शन ऑल्सो. ओके, सो उसको पुश यहाँ से भी आ रहा है, उसको पुश यहाँ से आ रहा है. अगर किसी बॉल को अगर आपने यहाँ पे रखी है, दो साइड से पुश आ रहा है, इट विल कीप ऑन मूविंग इन दिस डायरेक्शन. अगर सिंगल साइड से पुश है तो लीनियर आ रहा है, दैट वी कैन से इट इज़ ओनली द 1D मोशन, राइट. सो नाउ विल सी द इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स के जिसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चन. सो काइनेमेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं हमारी, पहली ये होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, कि यू इज़ माई फाइनल, सपोज पार्टिकल स्टार्टिंग विद इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और इसकी पोजीशन है x0, ठीक है, और आफ्टर सर्टेन टाइम t पे इसकी वेलोसिटी हो गई v और टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गई इसकी x, ठीक है. अब v t और x के बीच में रिलेशनशिप, v u t s के बीच में रिलेशनशिप सेट करनी है. तो पहली रिलेशनशिप है मेरी ये, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कि फाइनल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट t इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू t. अब ये कैसे आया मेरा, सो a इज इक्वल्स टू dv बाई dt मुझे पता है, ठीक है, t मैं इधर ले गया एंड आई इंटीग्रेट a डॉट डी टी इज इक्वल्स टू dv, आई इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, व्हाट इज दिस इज a t इज इक्वल्स टू v माइनस u, u मैं इधर ले आया, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी. सो दिस इज हाउ आई हैव गॉट इट. नाउ सेकेंड इज कि अगर मेरा इनिशियल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज एट x0, सो आफ्टर टाइम पीरियड t पार्टिकल कहाँ पे होगा, सो दैट इज x इज इक्वल्स टू फाइनल जो ये वाला पोजीशन आएगा मेरा फ्रॉम सम ओरिजिन पॉइंट, सो इट इज़ x0, ठीक है, प्लस यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. एंड हाउ वी रीच दिस इक्वेशन, इफ सपोज आई नो v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, v की वैल्यू मैंने पुट कर दी दिस, u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, t मैं इधर ले गया तो इट इज u प्लस ए टी इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, x इज इक्वल टू 0 टू x, t को मैंने इंटीग्रेट कर दिया 0 टू t. सो इससे मेरी वैल्यू हो गई x इज इक्वल्स टू x0 प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. दिस इज माई क्वेश्चन. ओके, दिस इज माई क्वेश्चन. सो दिस इज माई क्वेश्चन कि मेरा x कैसे वेरी करता है विद द टाइम व्हेन आई हैव गिवन इनिशियल स्पीड एंड एक्सेलरेशन. Third is giving me the relationship between displacement, acceleration and velocity. No time involvement in this. How I have got it? So मेरे को पता है मेरा acceleration is v is equals to dv by ds, ठीक है, यहाँ से मैं ds इधर ले गया, तो v dot dv is equals to a dot ds. I integrate both the sides, यहाँ पे u से v के कर दिया और यहाँ पे ds का मेरा 0 से s तक कर दिया, तो यहाँ पे मेरा आ गया v स्क्वायर बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू ए एस, इधर ले गया तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है. सो दैट्स हाउ आई गॉट इट. सो दीज आर द मेजर 3 क्वेश्चन. द फोर्थ क्वेश्चन इज कि जो डेल्टा एक्स है दैट इज हाउ दिस डेल्टा एक्स यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज डेल्टा एक्स ट्रेवल इज कि अगर मैं इसकी वेलोसिटी इन दोनों की डेल्टा एक्स इज वी एवरेज ले लूँ, वी एवरेज इंटू डेल्टा टी कितना, और वी एवरेज क्योंकि मेरा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, आई कैन राइट इट डाउन यू प्लस वी
by 2. दिस इज माई एवरेज वेलोसिटी. अगर ये एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं होती, इट इज़ नॉट अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, आई कैन नॉट राइट दिस एज एन एवरेज, बट व्हेन बिकॉज इट इज़ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, आई कैन राइट इट डाउन. माई एवरेज वेलोसिटी इज u plus v by 2. दिस इज माई एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड, दैट इज गोइंग टू गिव मी डेल्टा x. ठीक है. नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. इट इज़ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड. डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का मतलब है कि सपोज पार्टिकल मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ पे पहुँचा. अगर मैं कहूँ s इज इक्वल टू 1 सेकेंड में टोटल मूवमेंट कितना हुआ, मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, s1. अगर मैं s इज इक्वल टू 2 निकालूँ कि 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट विल गिव यू दिस वैल्यू. s इज इक्वल टू 3 लूँ तो दिस इज गोइंग टू गिव यू दिस वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का टोटल, नॉट द कर्व 1, दिस इज द टोटल. ओके. अगर मैं s इज इक्वल टू 4 लूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक का आएगा टोटल. सो इट इज़ गिविंग मी फ्रॉम 0 टू अप टू दिस पॉइंट वैल्यू. ओके. नाउ मेरे को पूछा गया nth सेकेंड में. सपोज s1 क्या होगा, s1 इज s0 से s1 की वैल्यू. s2 क्या होगा मेरा, s0 से s2 की वैल्यू. सो s1 इज दिस वन, s2 इज दिस वन. और मेरे से पूछा कि सेकेंड में बताओ दिस वैल्यू. तो ये कैसी क्या हो जाएगी, s2 माइनस s1. ठीक है. इस वाले का डिस्प्लेसमेंट माइनस दिस डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू गिव मी दिस x वैल्यू. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड कि nth सेकेंड मीन्स के n+1 में कितना मूव किया माइनस n-1 में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज गोइंग टू गिव मी nth सेकेंड. क्लियर. सो nth सेकेंड कैसे निकाला, मेरे को ये EF निकालना है. EF क्या होगा मेरा, SF. दिस इज माई SF पूरा. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट इन f n सेकेंड. ठीक है. नाउ दिस इज माई AE is my displacement in n-1 second. So AF minus AE is going to give me this nth second में कितना मूवमेंट हुआ. ठीक है. this n second में कितना, या so this n second में कितना मूवमेंट हुआ. so we'll see कि यहाँ पे मेरा ये कितना हो गया, un plus half an square. so हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स हमने लगाई, यहाँ पे भी सेकेंड इक्वेशन काइनेमेटिक्स लगाई. आई हैव माइनस इट एंड आई हैव गॉट दिस थिंग. Sn में कितना आया, u plus a by 2 2n-1. इट्स अ डायरेक्ट फॉर्मूला. ठीक है. ये डिस्प्लेसमेंट आया. ठीक है. जस्ट रिमेंबर दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट. सो बट सपोज एक पार्टिकल है, वो यहाँ से मूव किया, यहाँ से मूव करके ये यहाँ से जाके यहाँ पे आ गया. ठीक है. ये जो अगर मैं यहाँ से ही मूव करके यहाँ पे आया पार्टिकल. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे इसका Sn निकालूँ कि nth सेकेंड में क्या है Sn, nth सेकेंड में इट विल गिव मी अ जीरो वैल्यू. इट विल गिव मी अ जीरो वैल्यू. अगर मैं सपोज पार्टिकल के सेकेंड में वैल्यू निकालूँ, सेकेंड में यहाँ पे ये मूव करके यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया. सो S2 सेकेंड में अगर मैं वैल्यू निकालूँ, इट विल गिव मी जीरो बिकॉज इट हैज़ गॉन अप टू हेयर एंड कम बैक हेयर. सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है बट डिस्टेंस इज़ नॉट जीरो. सो अगेन वेन एवर द पार्टिकल इज टेकिंग अ टर्न, तो उसमें भी जो nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू nth सेकेंड में जो उसका डिस्टेंस होगा. ओके. दैट इज व्हाट वी हैव रिटन. डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इफ द पार्टिकल इज टर्निंग बैक. ओके. सो पार्टिकल यहाँ पे अगर टर्न बैक नहीं कर रहा, सो Sn इज इक्वल्स टू dn. तो दोनों सेम हो जाएंगे मेरे. अगर पार्टिकल यहाँ पे जाके मूव करके यहाँ पे वापस आ गया, तो अगर मैं देखूंगा तो Sn की वैल्यू मेरी जीरो हो जाएगी, बट dn मेरा 2 टाइम्स ऑफ EF होगा. ठीक है. 2 टाइम्स ऑफ EF. ओके. सो दैट इज माई डिस्टेंस एंड इट विल नॉट बी जीरो. सो वी विल बी हैविंग ए क्वेश्चंस ऑन दिस कि मेरा डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल टर्न अराउंड ले रहा है एंड आई बीन आस्क्ड कि nth सेकेंड में कितना होगा. सो देयर हैज़ बीन अ क्वेश्चन ऑफ दिस. विल सी दैट. Okay, so few questions has been left, so we'll start working on the questions. यहाँ पे मेरे को दे रखा है, we'll see some questions on equation of kinematics. यहाँ पे मेरे को दे रखा है पार्टिकल है A, वो लूजेस 20% ऑफ वेलोसिटी जब वो 108 मीटर चल लेता है. मेरे को बताना है वो मैक्सिमम कितना और चलेगा 108 मीटर के बाद. ठीक है. ये बताना है मेरे को. तो मेरे को बता रखा है इनिशियल वेलोसिटी इज़ u और इट लूजेस फाइनल वेलोसिटी 0.8 हो जाती है, 20% लूज कर देता है 108 मीटर चलने के बाद. सो आई एम हैविंग द वेलोसिटी रिलेशनशिप विद डिस्टेंस. आई कैन अप्लाई द थर्ड इक्वेशन. और फिर उसके बाद मेरे से पूछा है कि अगर ये रिटार्डेशन यूनिफॉर्म रहे, सेम डी एक्सेलरेशन करे. पहले तो मैं डी एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ विद दिस रिलेशन. ठीक है. दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी 0.8 u, इनिशियल इज u. 108 मीटर में आई टेक आउट इस एक्सेलरेशन
अब ये एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है, आगे भी यही चलेगी, ठीक है। अब मेरे को बताना है कि वो फाइनली कितना जाके फाइनली स्टॉप हो जाएगा मतलब इसका वी फाइनल मेरा 0 हो जाए। तो नाउ आई कैन अप्लाई वी फाइनल 0। इनिशियल मैंने लिया क्योंकि मेरे को बताना है उस पॉइंट से 108 मीटर के बाद कितना मूव और करेगा। तो पॉइंट 108 मीटर पे मेरी वेलोसिटी थी 0.8 u प्लस 2 times as. A is my same, this value, and s, and if I calculate this s, I've got this 192 मीटर। so 108 के बाद 192 मीटर और मूव करेगा वो। ओके, सो जब भी पार्टिकल का मेरे से पूछा जाता है कि कब जाके वो स्टॉप होगा, कि पार्टिकल की अगर v ये है और एक्सेलेरेशन इधर लग रही है, तो पार्टिकल कब जाके स्टॉप होगा, वी हैव टू फाइंड आउट वी एफ इजिकल टू 0, फाइनल वेलोसिटी उसकी कब 0 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट विल सी, just I'll have some water. Yes, so this is a question which I was talking कि पार्टिकल ns सेकेंड में ही मूव करके वापस यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मेरा इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ns सेकेंड में 0, बट डिस्टेंस विल नॉट बी 0, सो दैट इज बेस्ड ऑन दैट लॉजिक विल बी देयर इन दिस क्वेश्चन। सो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 5 है। जब भी ये दोनों अपोजिट में हैं, दैट मीन्स पार्टिकल विल मेक अ टर्न अराउंड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। विल सी वेलोसिटी इज दिस, एक्सेलेरेशन इज दिस। सो मुझे बताना है पार्टिकल किस टाइम पे जाके वी एफ 0 हो जाए, स्टेशनरी हो जाए, और टी सेकेंड और डी थर्ड निकालना है। कितना डिस्प्लेसमेंट मेरा सेकेंड में हुआ और कितना डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्टेंस मेरा सेकेंड में है, कितना डिस्टेंस मेरा थर्ड सेकेंड में है, ठीक है। सेकेंड में 1 2 3, सो 1 2, सो 0 1 2 3, सेकेंड में मेरा ये हो गया, ठीक है। अगर पार्टिकल टर्न नहीं होगा तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक का थर्ड सेकेंड हो गया। अगर पार्टिकल टर्न अराउंड लेता है तो दैट विल बी डिफरेंट। अगर पार्टिकल सेम रहता है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो यार। सो विल सी कि पार्टिकल कब स्टॉप होगा, वेदर द पार्टिकल स्टॉपिंग बिटवीन दिस टाइम पीरियड और नॉट। सो यहाँ पे मैंने लिया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी को फाइनल पुट किया, आई गॉट t की वैल्यू 2.5, दैट मीन्स 2.5 पे पार्टिकल इज मेकिंग अ स्टॉपेज। ओके, सो t इज इक्वल टू 0 1 2 3, इस पॉइंट पे 2.5 पे 0 हो गया। तो पार्टिकल यहाँ से मूव करके ऐसे मूव करके, और यहाँ से पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है एंड इट इज़ मेकिंग अ टर्न बैक हेयर। सो एट t इज इक्वल्स टू 0 1 2 और t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड पे टर्न अराउंड ले रहा है, और यहाँ पे t इज इक्वल टू 3 पे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर मैं S3 निकालूंगा तो इट विल गिव मी अ 0 वैल्यू, बिकॉज ये यहाँ से स्टार्ट करके वापस यहीं पे आ रहा है S3 0, बट D3 होगा जो मेरे को यहाँ पे पूछा गया है, दैट विल नॉट बी 0, सो आई कैन नॉट अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला हेयर। जो SN वाला ये मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला है, आई कैन नॉट अप्लाई इट इन D3। D2 में अप्लाई कर दूंगा बिकॉज 2 में कोई टर्न अराउंड नहीं हो रहा है मेरा, ठीक है। इट इज़ बोथ आर इन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम वेलोसिटी, द पार्टिकल इज नॉट मेकिंग एनी टर्न, वेलोसिटी 0 नहीं हो रही है, सो माई डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो second में I can apply this formula. For the second I can apply this formula, but for the third second I cannot apply, because in the third second if I apply the formula मेरे को s third 0 मिल जाएगा, बल्कि मेरा s third क्या होगा, यहाँ से ये इतना डिस्टेंस एंड देन ये, so 2 times of this will be my D3। अब नाउ कैलकुलेट करके देखते हैं। पहले मैंने S2 निकाला, S2 के लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 2 की वैल्यू, तो दिस इज़ माई कमिंग एज 2 मीटर। सो मेरे को पता है पार्टिकल स्टॉप नहीं हुआ 2 तक, सो माई डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, S2 इज इक्वल टू D2। नाउ मैं S इज इक्वल टू 3 निकाला, S इज इक्वल टू 3 मेरी वैल्यू, जो कि नेचुरल हमने देखा मोशन किस तरीके से हो रहा है, S इक्वल टू 3 पे 0 आ गई। डिस्टेंस पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ 2.5 पे 0 हुआ और 3 पे यहाँ पे आ गया, तो इसकी थर्ड सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 0 आ गई, ठीक है। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस क्या होगा मेरा, कि यहाँ से 2.5 सेकेंड तक का डिस्टेंस एंड 2 सेकेंड तक का, ठीक है। यहाँ से सपोज मेरा 0 से यहाँ तक का, मैं 0 से S0 2.5 S का मैं आई टेक S 2.5, S2 निकाल लूँ मैं, एंड आई माइनस S 2.5 विद S2, सो आई गेट दिस वैल्यू, ठीक है। आई गेट दिस वैल्यू एंड आई मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाई 2 इंटू दिस वैल्यू एंड आई गेट द D3, सो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन। सो पहले मैंने S 2.5 निकाला, S 2.5 निकालने के लिए I've done this ut plus, so final मेरी S 2.5 कैसे होगी मेरी, I have applied this formula, final velocity 0, initial this S 2as,
सो S2.5 मेरा आ गया 6.25, S2 मैंने निकाला, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, S मेरा S2 जो आ गया S2.5 इतना आ गया, एंड S2 मेरा ये आ गया, ठीक है। यहाँ से पार्टिकल ने टर्न अराउंड ले लिया है, तो S2 मेरा 6 आ गया, ये 6.25 आ गया, तो मेरा ये जो डिस्टेंस आ गया जैसे 0.25, एंड आई मल्टीप्लाई दिस बाई 2 बिकॉज पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दिस इज लाइक दिस, सो 0.25 इंटू 2, सो माई डिस्प्लेसमेंट इन द थर्ड सेकेंड इज 0.3 मीटर। ओके, सो पार्टिकल वी हैव टू वेरी मच कॉशियस जब पार्टिकल टर्न ले रहा है, जब पार्टिकल की वेलोसिटी किस पॉइंट पे हो रही है जीरो, दैट यू हैव टू सी कि किस पॉइंट पे जीरो हो रही है, वहाँ से वो टर्न अराउंड लेगा। सो एट दैट इन दैट second the particle displacement will never be equal to particle displacement. So that's what you have to keep in mind. Okay, now we'll see another question. यहाँ पे बोल रहा है कि दो कार हैं, कार ए एंड कार बी। कार ए यहाँ से स्टार्ट कर रही है, यहाँ पे पहुँच रही है, और मेरे को पैरामीटर दे रखे हैं कि जो कार ए की स्पीड है यहाँ पे दैट इज़ मोर देन कार बी वी टाइम्स। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा है इक्वेशन में कि कार ए की वेलोसिटी वी टाइम्स मोर देन कार बी, और कार बी का मेरे को टाइम पीरियड दे रखा है, कार बी टाइम पीरियड इज, कार ए टाइम पीरियड इज लेस देन टी टाइम्स देन कार बी। तो कार ए यहाँ पे वेलोसिटी भी ज़्यादा है इस पॉइंट पे, सपोज यहाँ से स्टार्ट करी 1 से 2 पे, सो 1 से 2 पे, सो 1 से स्टार्ट करके 2 पे गए, तो 2 पे जो कार ए की वेलोसिटी भी ज़्यादा है और टाइम पीरियड भी 2 को पहुँचने में कम लगा, हमें रिलेशनशिप दे रखी है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, we have to eliminate the unknowns and we have to reach this, we have to show that v is equals to root a1 a2, और मेरे को दे रखा है स्टार्टिंग जो है it is start from the rest and the constant acceleration है a1 a2, so this is the only thing given। so यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट किया, यहाँ पे पहुँचा, so मेरे को पता है यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, I'll apply the third equation, v square is equals to u square plus 2s, ठीक है। यहाँ पे ये लगाया मैंने, तो इसकी वेलोसिटी va की आ गई बिकॉज एक्सलेशन इज a1, 2a1s, vb की आ गई 2a2s, ठीक है। टाइम पीरियड निकाला मैंने यहाँ से यहाँ तक का, कितना है इसको टाइम पीरियड लगा, इट इज़ 1/2, सॉरी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी दिस इज़ 0, यहाँ से मेरी a1 a2 से मैंने ये निकाला टाइम पीरियड, दैट इज़ 2s/a1 एंड 2s/a2। नाउ आई नो कि वी ए जो है मेरा इज इक्वल्स टू जो वेलोसिटी ऑफ ए है, इट इज़ v टाइम्स मोर देन b, और टाइम पीरियड इज t टाइम्स लेस देन b। I'll put this values, va की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, va की वैल्यू I just put it here, vb की वैल्यू I just put it va की वैल्यू here, vb की वैल्यू here, and ta की वैल्यू here, tb की वैल्यू here, got this as v, this is t। if I divide both the sides because I need v, if I divide both the sides and I do calculation, I take the root 2s out, I do the calculation, and I've got this result which has been asked। okay, I've got this result। सो आइडिया इज़ टू मेरे को कुछ एक वेरिएबल्स में आई हैव टू फाइंड आउट, कुछ रिलेशन दे रखा है वेलोसिटी और टाइम का, किस तरीके से दो कार में डिफरेंसेस हैं। सो आई जस्ट हैव टू अप्लाई द काइनेमेटिक इक्वेशन, ट्राई टू एलिमिनेट जो हमारे को वेरिएबल हमने लिया है, यहाँ पे वेरिएबल हमने लिया एस, बट एस दोनों केस में सेम है। आई विल ट्राई टू एलिमिनेट दैट वेरिएबल और वी रीच दिस फाइनल रिजल्ट। ओके, सो कुछ एक चीज़ दे रखी है हमारे को कि अगर मेरी इनिशियल स्पीड 0 है एंड द पार्टिकल इज़ मूविंग विद एक्सेलरेशन ए, तो इनिशियल स्पीड 0 हो गई, दैट मीन्स माई यू टी वाली जो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें यू टी वाली चीज़ मेरी 0 हो गई। सो एस मेरा आ गया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। सो एस मेरा 1, S2, S3 दीज आर ऑल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के टाइम पीरियड 1 में, टाइम पीरियड 2 में, टाइम पीरियड 3 सेकेंड में कितना हुआ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। सो टाइम पीरियड 1 में इसका कितना हो गया, 2 में कितना हो गया, 3 में, तो इट विल बी इन द रेशियो ऑफ 1:4:9 रेशियो 16:25 लाइक दैट इट विल बी इन द रेशियो ऑफ टी स्क्वायर। ओके, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। सेम वे अगर मेरे को nth सेकेंड में लेना है, nth सेकेंड का फॉर्मूला था मेरा यू टी प्लस 2n-1 a/2, यहाँ पे भी यू टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला होगा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वैल्यू 2n-1। सो टी की वैल्यू अगर 1 सेकेंड में है तो इट विल बी 1, 2 सेकेंड में कितना आएगा 3, सो ऑड नंबर में 5, 7 लाइक दैट इट इज़ वेरिंग। ओके, 2n-1 से इट इज़ वेरिंग डिस्टेंस जो भी nth सेकेंड में कवर करेगा। अगर मेरे को इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u, एक इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन,
एक्सेलरेशन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो जो कार मेरी स्टॉप होगी, स्टॉप होने के लिए फाइनल वेलोसिटी 0 अगर मैं डालूंगा, सो दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू कि कितने डिस्टेंस के बाद जाके, सपोज यहाँ से स्टार्ट किया यू और ये मेरा एक्सेलरेशन है, अब मेरे से ये कार कितने डिस्टेंस पे जाके कितने डिस्टेंस पे जाके स्टॉप होगी, सो दैट वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो अगर मेरा u की वैल्यू n टाइम्स u कर दूँ तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन यू स्क्वायर, एन स्क्वायर टाइम्स u। सो जितनी मेरी इनिशियल स्पीड ज़्यादा होगी ऑब्वियसली उतना ही मेरा डिस्टेंस ट्रैवल होगा, दैट इज स्क्वायर ऑफ दैट इनिशियल वेलोसिटी। ओके, वन मोर रिलेशनशिप दिया गया है कि अगर मेरा इनिशियल वेलोसिटी v1 है, एट पॉइंट b वेलोसिटी v2 है और मिड पॉइंट पे vc है, और यहाँ पे मेरी कितनी वेलोसिटी होगी, यू कैन अप्लाई दिस, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, वी कैन अप्लाई दिस एज ए इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज ए फाइनल वेलोसिटी, then in the second from c to b you can use this as a initial velocity and this as a final velocity and you can relate it and तीन इक्वेशन बना सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s में ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन भी मैं यही बना सकता हूँ, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इज मैं एट दिस पॉइंट vc, फाइनल वेलोसिटी इज दिस, और थर्ड इक्वेशन में बना सकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी इज दिस एंड फाइनल वेलोसिटी इज दिस। तीन इक्वेशन बनाऊंगा एंड आई कुड एबल टू सॉल्व एंड आई गॉट द वैल्यू vc जो इस सेंटर पॉइंट पे वेलोसिटी है, दैट इज रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2, दैट इज माई वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, सेंटर पॉइंट। ओके, so these are certain things which you can memorize के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इफ़ यू स्पीड अप द थिंग्स तो बहुत अच्छा रहता है अगर आपको क्वेश्चंस आए एंड यू कैन डायरेक्टली सी दिस रिलेशनशिप एंड यू कैन अप्लाई इट। ओके, नेक्स्ट विल सी द क्वेश्चन ना। यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कार है, सॉरी एक ट्रेन है 200 मीटर लंबी, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन 4 सेंटीमीटर पर स्क्वायर से। द हेडलाइट ऑफ दिस इंजन इज स्विच्ड ऑन एट t इज इक्वल टू 30 सेकेंड पे हेडलाइट स्विच ऑन किया और टेल लाइट इसकी स्विच ऑन हुई t इज इक्वल टू 120 सेकेंड पे। मेरे को बताना है कि दोनों के बीच के डिस्टेंस जब उसकी हेडलाइट ऑन हुई और उसकी टेल लाइट ऑन हुई, जो ऑब्जर्वर है जो प्लेटफॉर्म पे है उसके बीच का उसको कितना डिस्टेंस ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऐसा है कि अगर मेरा प्लेटफॉर्म पे ये ऑब्जर्वर मेरा बैठा हुआ है, ये मेरी ट्रेन है पहली, ये मेरी हेड है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे मेरा 4 सेकंड, ये 4 सेकंड में कुछ एक्सलेट करके आगे मूव करी होगी, सो इट मूव अप टू दिस पॉइंट। ठीक है, 4 सेकंड में, 4 सेकंड बाद मेरी हेडलाइट ऑन हो गई, दिस ऑन। ओके, 4 सेकंड बाद हेडलाइट ऑन हो गई। फिर उसने बोला कि 120 सेकंड बाद टेल लाइट, 120 सेकंड में फिर ये मूव करेगी बिकॉज इट इज़ एक्सलेटिंग, सो इट मूव अप टू दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक मूव करी एंड टेल लाइट इज स्विच ऑन। अब मेरे को बताना है कि ऑब्जर्वर को ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, इट कैन बी डिस्टेंस हेयर या टेल लाइट मेरी पीछे ही रह गई अभी, सपोज हेडलाइट मेरी ये है और सॉरी यहाँ पे मेरी हेडलाइट ऑन हुई, ये मेरी टेल लाइट है। अगर मेरी ट्रेन आगे पहुँच गई तो मे बी टेल लाइट विल बी आफ्टर दिस हेडलाइट ऑन, और अगर मेरी ट्रेन अगर पीछे रह गई, यहाँ तक रह गई, अगर एक्सीलरेशन कम है तो डिस्टेंस विल बी इन नेगेटिव साइड। ठीक है, और डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव साइड, ये h और t के बीच का। और अगर मेरी एक्सीलरेशन कम रही, एक्सीलरेशन ज़्यादा रही तो इट विल कीप ऑन मूविंग, अगर और ज़्यादा रही तो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा जितनी ज़्यादा एक्सीलरेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर मेरी एक्सीलरेशन कम रही तो इट कैन बी कि टेल लाइट मेरी यहाँ पे स्विच ऑन हुई, हेडलाइट मेरी यहाँ पे स्विच ऑन हुई, तो जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है दैट इज़ नेगेटिव। तो विल सी दैट इन क्वेश्चन। पहले एक बार देख लेते हैं, फिर दोबारा हम लोग इस फिगर के थ्रू फिर से एक बार देखेंगे, फिर से एक बार आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। पहले मेरे को बोला हेडलाइट स्विच ऑन हुई एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, तो पहले 4 सेकेंड पे देखते हैं। ट्रेन यहाँ पे, ये मेरी इनिशियल पोजीशन ऑफ ट्रेन है, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, टेल लाइट मेरी स्विच ऑन करी 4 सेकेंड पे। 4 सेकेंड पे कितनी ट्रेन आगे मूव कर दी, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ut वाली इक्वेशन मेरी 0 हो गई, हाफ ए टी स्क्वायर से मेरा आ गया 72 मीटर। तो दैट मीन्स ट्रेन मूव्ड 72 मीटर। ये 200 मीटर की ट्रेन है, ट्रेन मूव्ड 72 मीटर। ठीक है, ये यहाँ पे 72 मीटर आगे मूव कर गया ये वाला पॉइंट। ठीक है, 72 मीटर। यहाँ पे मेरी हेडलाइट ऑन हो गई, ये मेरी हेडलाइट ऑन हो गई। ठीक है, ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ सेकंड कह रहा है कि मेरी टेल लाइट जो स्विच ऑन हो गई, दैट इज स्विच ऑन व्हेन इट मूव 120 सेकेंड, वन आफ्टर 120 सेकेंड। अब आफ्टर 120 सेकेंड ट्रेन विल बी वेयर, विल कैलकुलेट कि एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 120 सेकेंड में इट इज़ फ्रॉम दिस पॉइंट इट रीचेस, सो यहाँ से ये यहाँ पे थी ट्रेन पहले, यहाँ से ये 228 मीटर आगे मूव कर गई। इसका हेड जो हो गया, यहाँ पे हेड ये था तो इसका हेड मूव कर गया 228 मीटर। ठीक है, ट्रेन का हेड 228 मीटर इन
इन 120 सेकेंड इन सो पहले मेरा 60 सेकेंड में ये हेड इसका यहाँ पे पहुँचा ट्रेन का, और 120 सेकेंड में इसका हेड यहाँ पे पहुँच गया। अब मेरे को बताना है कि यहाँ पे जो मेरी लाइट स्विच ऑन हुई और यहाँ पे मेरी टेल लाइट स्विच ऑन हुई, इन दोनों के बीच का मेरे को डिस्टेंस बताना है कितना है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे मेरी ये 288 की जगह मेरी और कम होती तो आई कुड से कि 200 होती, 200 होती तो दैट मीन्स ट्रेन वुड बी समवेयर हेयर। ट्रेन मेरी यहाँ से यहाँ पे कुछ यहाँ पे होती। सो यहाँ पे अगर मेरी टेल लाइट ऑन होती तो डिस्टेंस वुड बी नेगेटिव साइड, दिस वुड बी माई डिस्टेंस, हेड और टेल के बीच का डिस्टेंस। अभी क्या है मेरा हेड और टेल के बीच का डिस्टेंस इज दिस, हेड मेरा यहाँ पे ऑन हुआ, ठीक है, हेड मेरा यहाँ पे ऑन हुआ, टेल मेरा यहाँ पे ऑन हुआ, ठीक है। विल सी कि यहाँ पे दिस इज t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 60 पे उसका मूवमेंट हुआ 72 मीटर, हेड मूव कर गया 72 मीटर। t इज इक्वल टू 120 पे इसका हेड मूव कर गया यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज 288 मीटर, ठीक है। अब मेरे से पूछा गया ऑब्जर्वर को इस पॉइंट पे हेडलाइट ऑन हुई और इस पॉइंट पे टेल लाइट ऑन हुई, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा गया कितना है, और डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं। सो दिस इज माई 288 माइनस आई डू दिस 72, ठीक है, माइनस ये 200 इज इक्वल्स टू एक्स, दिस इज माई एक्स, ठीक है। ये एक्स कैसे निकला मेरा, दिस 288 माइनस दिस 72, 288 दिस 72, दिस इज माई 200, ठीक है। सो 72 प्लस एक्स प्लस 200 इज इक्वल्स टू 288, ठीक है। यहाँ से एक्स निकालूंगा मैं, 288 माइनस 72 माइनस 200 दैट इज कमिंग आउट टू बी 16, ओके। तो एक्स की वैल्यू मेरी आ गई 16। सो जो ऑब्जर्वर को विजुलाइज हुआ, जो मोमेंट ऑब्जर्वर को जो विजुलाइज हुआ, द डिस्टेंस इज 16, ओके, राइट। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, just go through it once again and you'll get to know, or I'll just give you a review of this question once again. So पहले ट्रेन यहाँ पे थी at this point, 200 मीटर की ट्रेन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, 4 सेकंड बाद वो यहाँ पे मूव कर गई, दिस मूव्स अप टू दिस पॉइंट, 4 सेकंड बाद इट मूव्स अप टू हेयर, यहाँ पे इसने हेडलाइट ऑन कर दी, ठीक है। 60 सेकंड बाद, सॉरी 4 सेंटीमीटर पर स्क्वायर इसकी सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्सीलरेशन है, 60 सेकंड बाद वो यहाँ पे पहुँच गई, हेडलाइट ऑन हो गई, ठीक है। अब वो कह रहा है 120 सेकंड के बाद वो यहाँ पे पहुँची, तब इसकी टेल लाइट ओपन हुई, ठीक है। अब मेरे को ये पूछा है कि इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस हुआ, इन दोनों के इवेंट के बीच का, हेडलाइट ऑन होने का और टेल लाइट ऑन होने का बीच का डिस्टेंस कितना है। वो कैसे निकाला मैंने, पहले मैंने निकाला कि 60 सेकेंड में वो कहाँ पर मूव करी, दिस इज़ माई 72 मीटर मूव कर गई, 120 में इसका हेड मूव कर गया 288, ठीक है। सो नाउ आई नो दिस 288 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ दिस ट्रेन इज 200 प्लस एक्स जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, प्लस ये जो 72 मीटर फर्स्ट 60 सेकेंड में आगे मूव कर गया था साइड, यहाँ से मैंने एक्स निकाला, दैट कम्स आउट टू बी 16, राइट, क्लियर। सो दिस ऑल फॉर टुडे, वी हैव कवर्ड up to our motion in a straight line. So we'll just give a quick review कि हमने आज क्या क्या देखा। हमने देखा acceleration, we have seen acceleration, what is acceleration, how the change in velocity is giving you the acceleration, we have done certain questions on that. When we say when the particle accelerate, when the particle deaccelerate, we see कि direction of motion of velocity or direction of acceleration के basis पे when the particle accelerate, when the particle deaccelerate, then we have seen the instantaneous acceleration, why there's a need for instantaneous acceleration when the average acceleration was there, and instantaneous acceleration is the slope of the tangent on VT curve. Then we have seen this relationship of acceleration with the dv by dt and d2x by dt2, and d2x by dt2 represent the smoothness of the curve. And then we have done this question where we have applied this logic of dot product less than 0 when something is opposite. We have done this question to find out the maximum displacement and to understand the motion of a particle. Then this is not a uniformly accelerated motion because here the particle acceleration is reversing, so it is not a uniformly accelerated motion, just keep in mind. Then we have done this question, we have seen the motion in a straight line. कब बोलते हैं हम straight line motion, when the acceleration and velocity are parallel or anti-parallel, then only the motion will be a straight line motion. If कुछ किसी एंगल पे अगर मेरी
पुश मिलेगा, देन इट विल नॉट बी ए 1D मोशन, इट विल बी ए 2D मोशन, क्योंकि इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ जाएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा. वर्टिकल कंपोनेंट, एज वी नो, इट इज़ गोइंग टू हेल्प इन मूविंग दिस पार्टिकल, मेकिंग इट अ कर्व. और जो इसका along the side component होगा, it is going to increase the speed. So uniformly accelerated motion हमने पढ़ा. Uniformly accelerated motion के इसकी acceleration is always acceleration of the particle is always same, कि it is in the same direction, और उसका जो magnitude है that will also be same. It should not change. So this is not a uniformly accelerated motion, and this is a uniformly accelerated motion. Then we have seen the kinematic equation, 3 equation of kinematics. This is also we have derived another equation. Then we have seen the displacement in nth second, और particle का turn around हो जाता है, तो how the displacement and distance got changed, that we have seen. Then we have done certain questions on that. And okay, so that's all for today. So tomorrow we'll meet up, or in the next lecture we'll meet up. Next lecture will be in the motion in 1D under gravity, that we are going to see in the next lecture. I hope you understand the lecture. So we'll meet up next time. Okay, thank you.